بیرسٹر علی ظفر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس فیصلے پہ فیصلہ کرے گی۔ فی الحال اس کا رزلٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جتنے بھی جنہوں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے تھے، وہ اب آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑیں گے، اور ان کے لیے اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ پہلے سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کچھ دنوں سے کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا، اس کے لیے تیاری پوری ہے، اور انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ہم اس کو جو اگلے دن آ رہے ہیں، چند دن میں میرا خیال ہے الیکشن کی اب تیاری ہونی چاہیے، کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ہے، اور انشاءاللہ الیکشن پی ٹی آئی پورے زور و شور سے لڑے گی۔ بے شک سمبل ہم سے فی الحال کے لیے لے لیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی نہیں ہے۔ پارٹی ابھی تک رجسٹرڈ ہے، اور یہی فیصلہ اناؤنس کیا گیا ہے، اس میں پارٹی کو نہیں چھیڑا گیا، صرف سمبل کی بات ہے، لیکن الیکشن لڑنے سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو نہیں روکا گیا۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ سٹیپ ہونی چاہیے ہماری 8 فروری کا دن، جب آپ لوگ سب آ کے پی ٹی آئی کے لیے انشاءاللہ ووٹ کریں گے، اور پھر اگلی حکومت ہم بنائیں گے۔ اب ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ، جنہوں نے ہمارے ساتھ بھی ہمدردی کا ہمیشہ سے اظہار کرتے رہے، اور ہمارے لیے بڑا انتظار کرتے رہے آپ لوگ بھی۔ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ آج کے فیصلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازعہ فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ آج ٹیکنیکل بنیادوں پہ ایک پیج پہ مشتمل 14 درخواستیں 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق پر باری ہوئی ہے۔ انصاف کھوتا ہوا نظر آنا چاہیے، فقط اس لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جس کی پاپولرٹی 70% ہے، اس بنیاد پہ ختم کرنا کہ اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ بھی غلط، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر اپنے الیکشن کے لیے منتخب کرائے۔ یہ بہت ہی ٹیکنیکل بنیاد ہے۔ عوام اس وقت 12 کروڑ ووٹر رجسٹر ووٹر ہے، اس میں سے 10 کروڑ ووٹر الحمدللہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ 10 کروڑ عوام اور ووٹروں کے حقوق اور ان کی بنیادی حقوق اور ان کو ڈس انفرنچائز کرنے کی طرف ایک قدم ہو گیا ہے۔ اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ جس ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ دیا گیا ہے، چلتے چلتے جس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ مینٹینیبل پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن نہیں تھی، اس لیے کہ ہم نے ایک پٹیشن لاہور میں فائل کر دی تھی، بالکل مس ریڈنگ ہے اس کی۔ ہم نے ایک ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ ہماری ایک پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ ایک لیگل گراؤنڈ پہ تھی، پہلے سے پینڈنگ پٹیشنوں کے ساتھ وہ پٹیشن گئی تھی، اس پٹیشنوں میں پارٹیاں بھی ڈفرنٹ تھی، اس میں ایشو بھی ڈفرنٹ تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کی پٹیشن اس بنیاد پہ فائل ہوئی تھی کہ ہم نے الیکشن کرائے، اور الیکشن پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے کرائے تھے۔ اس فیصلے میں تذکرہ ہوا ہے کہ جس 14 بندوں نے درخواستیں دیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کریڈنشل کے لوگ اور پارٹی ممبرز ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کبھی رہا نہیں ہے، میٹیریل وقت پہ کبھی نہیں تھا۔ ہمارے 8,37,950 ممبران میں سے سنگل بندے نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کی آواز کے لیے ہے، بھلا رہے نہ رہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو قوتیں اس کو ہٹانا چاہتے 8 فروری کو ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بتائیں کہ پلان بی پر جو عمل درآمد ہوا ہے اور بری طرح ایکسپوز بھی ہوا ہے، تو کیا وہ آپ ایک منٹ سن،
एक मिनट सुने, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं सर, प्लान बी के एक मिनट जरा बोले, नहीं एक मिनट। इलेक्शन ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? 4 घंटे ताखीर का शिकार हुआ। नहीं, कोर्ट हमेशा करती है। नहीं नहीं नहीं, कोर्ट के फैसले को कोई मलिफाइडी नहीं करता। कोर्ट के फैसले हमेशा ताखीर से आते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2-3 नहीं, कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हक है, सुप्रीम कोर्ट जैसे कहे हमारा हक है रिव्यू का, और इंशाल्लाह इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये फैसला एट द एंड ऑफ द डे बहाल नहीं रहेगा। आल्दो इस फैसले ने हमें बल्ले से महरूम किया, हमसे 227 रिजर्व सीटें चली गई हमसे। इसके लिए हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद निशानों पे इलेक्शन लड़ेंगे। इससे करप्शन की इब्तिदा होगी और पाकिस्तान की जो पार्लियामान जो हम चाहते हैं कि मजबूत हो, वो करप्शन से पाक हो, वो अपने वोटों में, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की है, चाहे वो प्रेसिडेंट की है, चाहे वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की है, चाहे वो सेनेट की है, उसमें पैसे का लेन देन न हो, कारोबारी जो है ना वो इसमें ना आए, उसको तौफीक मिलेगी। देखो, अदलिया का काम है सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स की हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करे। फंडामेंटल राइट से अगर आप सारे लोगों को आउट करना चाहते हैं प्रैक्टिस से, तो ये इलेक्शन प्रोसेस से, तो बेशक आउट कर दे। अदालत देखे, आज अदालत ने फैसला कर लिया, हमें कबूल है, दैट्स एंड ऑफ इट। लेकिन ये इसका मतलब क्या नहीं, आपने दी थी, इमरान खान ने दी थी सर। आप चुरे एक मिनट कर लेना। आप सब आजाद लड़ेंगे इलेक्शन। ये आपकी बात ठीक है। आजाद लड़ेंगे तो इंतखाबी निशान भी सबका मुख्तलिफ होगा। ये ऑब्वियसली यही वो बात है। आप ये बताइए कि किस तरह से ये जो पीटीआई के इंशाल्लाह ताला अब हम ये सोचेंगे। बड़ी स्ट्रांग पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है। हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपना लिस्ट एक नया इशू करेंगे, उसमें अपने कैंडिडेट जिनको हमने टिकट्स दिए थे उनको नॉमिनेट बनाएंगे, उनके बारे में पूरा कैंपेन करेंगे। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं और ये उनके निशानात हैं, उनके वोट। देखो एक चीज, नियाजी साहब, आपके जो इल्जामात थे वो मुस्तरद किए चीफ जस्टिस ने, वो कह रहे थे कि आपके बेटे को वो नहीं जानते, तो आपको वो इल्जाम क्यों लगाया सर? प्लीज एक मिनट। देखो एक मिनट, इसका जो है ना, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट रखते हैं, तो जब आप इंडिपेंडेंट हो आप पे पार्टी के हिदायत और इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होते, और इसलिए आप पे आर्टिकल 63A लागू नहीं होता। आप जिसको चाहे वोट दे, इसके फर्क को हटाने के लिए हम सारे कोशिश करते रहे कि ये नियाजी साहब से सर जरा नहीं, इंशाल्लाह हमारे नहीं बढ़ेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारे कोई वोटर सपोर्टर नहीं बिकता है, ना हमारे कैंडिडेट बनेंगे। गुफ्तगू कर रहे थे बैरिस्टर अली गौहर और बैरिस्टर अली जफ़र, और उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान लेने का मतलब ये नहीं कि पार्टी ख़त्म हो गई, तहरीक इंसाफ अपनी जगह मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत मायूसी हुई, बैरिस्टर गौहर का ये कहना था। बैरिस्टर गौहर खान ने यह भी कहा कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, जिन तकनीकी बुनियादों पर फैसला दिया गया वो मिस रीडिंग है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो कुव्वतें ये सब करवा रही हैं उन्हें 8 फरवरी को शिकस्त होगी। तो आपको बताएं कि अली जफ़र वो भी गुफ्तगू कर रहे थे, बैरिस्टर अली जफ़र, उन्होंने ये कहा कि तमाम उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। तो आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हम आपको बताएं कि बैरिस्टर अली जफ़र ये कह रहे हैं कि तमाम उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया, जिन्होंने हमारे साथ भी हमदर्दी का हमेशा से इजहार करते रहे और हमारे लिए बड़ा इंतज़ार करते रहे। आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज टेक्निकल बुनियादों पे एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरख्वास्तें 25 करोड़ आवाम की बुनियादी हकूक़ पर बारी हुई है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। फ़कत इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी का जिसकी पॉपुलैरिटी 70% है, इस बुनियाद पे ख़त्म करना कि उस पार्टी के
सेक्रेटरी जनरल के पास इख्तियार नहीं है, वो भी गलत, लेकिन ये इख्तियार नहीं है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इलेक्शन के लिए मुंतखब कराए। ये बहुत ही टेक्निकल बुनियाद है। अवाम इस वक्त 12 करोड़ वोटर रजिस्टर वोटर है, उसमें से 10 करोड़ वोटर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के हैं। 10 करोड़ अवाम और वोटरों के हकूक और उनकी बुनियादी हकूक और उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने की तरफ एक कदम हो गया है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है। जिस टेक्निकल बुनियादों पे फैसला दिया गया है, चलते चलते जिसका जिक्र हुआ है कि ये मेंटेनेबल पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं थी, इसलिए कि हमने एक पिटीशन लाहौर में फाइल कर दी थी, बिल्कुल मिसरीडिंग है इसकी। हमने एक हाई कोर्ट को बताया था कि हमारी एक पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो एक लीगल ग्राउंड पे थी, पहले से पेंडिंग पिटीशनों के साथ वो पिटीशन गई थी। उस पिटीशनों में पार्टियां भी डिफरेंट थी, उसमें इशू भी डिफरेंट था। पेशावर हाई कोर्ट की पिटीशन उस बुनियाद पे फाइल हुई थी कि हमने इलेक्शन कराए और इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट में हमने कराए थे। इस फैसले में तस्करा हुआ है कि जिस 14 बंदों ने दरखास्तें दिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक क्रेडेंशियल के लोग और पार्टी मेंबर्स है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उनमें से कोई एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर कभी रहा नहीं है, मटीरियल वक्त पे कभी नहीं था। हमारे 8,37,950 मेंबरान में से सिंगल बंदे ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। इमरान खान साहब की आवाज के लिए है, भला रहे न रहे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की आवाज पे वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो कुव्वतें इसको हटाना चाहते 8 फरवरी को उनको शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। ये बताएं कि प्लान बी पर जो अमल दरामद हुआ है और बुरी तरह एक्सपोज भी हुआ है, तो क्या वो आप एक मिनट सुने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट जरा बोले। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? 4 घंटे ताकीद का शिकार हुआ। नहीं, कोर्ट हमेशा करती है। नहीं, कोर्ट के फैसले को कोई मलिफाइडी नहीं करता। कोर्ट के फैसले हमेशा ताखीर से आते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2-3 नहीं, कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हक है, सुप्रीम कोर्ट जैसे कहे, हमारा हक है रिव्यू का, और इंशाअल्लाह इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये फैसला एट द एंड ऑफ द डे बहाल नहीं रहेगा। आल्दो इस फैसले ने हमें बल्ले से महरूम किया, हमसे 227 रिजर्व सीटें चली गई हमसे। इसके लिए हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद निशानों पे इलेक्शन लड़ेंगे। इससे करप्शन की इब्तिदा होगी और पाकिस्तान की जो पार्लियामान जो हम चाहते हैं कि मजबूत हो, वो करप्शन से पाक हो। वो अपने वोटों में, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की है, चाहे वो प्रेसिडेंट की है, चाहे वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की है, चाहे वो सेनेट की है, उसमें पैसे का लेन देन न हो, कारोबारी जो है ना वो इसमें ना आए, उसको तौफीक मिलेगी। देखो, अदलिया का काम है सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स की हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करे। फंडामेंटल राइट से अगर आप सारे लोगों को आउट करना चाहते हैं प्रैक्टिस से, तो ये इलेक्शन प्रोसेस से तो बेशक आउट कर दे। अदालत देखे, आज अदालत ने फैसला कर लिया, हमें कबूल है, दैट्स एंड ऑफ इट। लेकिन ये इसका मतलब क्या नहीं, इमरान खान ने दी थी। आप चुरे एक बंदा कर लेना, आप सब आजाद लड़ेंगे इलेक्शन। ये आपकी बात ठीक, आजाद लड़ेंगे तो इंतखाबी निशान भी सबका मुख्तलिफ होगा। ये ऑब्वियसली यही वो बात है। आप ये बताइए कि किस तरह से ये जो पीटीआई के इंशाअल्लाह ताला अब हम ये सोचेंगे। बड़ी स्ट्रांग पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिनट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है। हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपना लिस्ट एक नया इशू करेंगे, उसमें अपने कैंडिडेट जिनको हमने टिकट्स दिए थे उनको नॉमिनेट बनाएंगे, उनके बारे में पूरा कैंपेन करेंगे। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं और ये उनके निशानात हैं, उनसे वोट। देखो एक चीज, नियाज़ी साहब, आपके जो इल्ज़ामात थे वो मुस्तरद किए चीफ जस्टिस ने, वो कह रहे थे कि आपके बेटे को वो नहीं जानते, तो आपको इल्ज़ाम क्यों लगाया सर? प्लीज एक मिनट देखो, एक मिनट, इसका जो है ना, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं
اور آپ الیکشن انڈیپینڈنٹ رکھتے ہیں، تو جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو آپ پہ پارٹی کے ہدایات اور انسٹرکشن لاگو نہیں ہوتے، اور اس لیے آپ پہ آرٹیکل 63A لاگو نہیں ہوتا۔ آپ جس کو چاہے ووٹ دیں، اس کے فرق کو ہٹانے کے لیے ہم سارے کوشش کرتے رہے کہ یہ نیاز اللہ نیازی صاحب سے سر ذرا کیا باقی پی ٹی آئی کے ایسے لوگوں کو آپ نے ووٹ دیے ہیں جو بک جائیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ ہمارے نہیں بنیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارے کوئی ووٹر سپورٹر نہیں بکتا ہے، نہ ہمارے کینڈیڈیٹ بنیں یہ نیازی صاحب آنسر دیجیے گا چیف جسٹس کے حوالے سے۔ گفتگو کر رہے تھے بیرسٹر علی گوہر اور بیرسٹر علی ظفر، اور انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان لینے کا مطلب یہ نہیں کہ پارٹی ختم ہو گئی، تحریک انصاف اپنی جگہ موجود ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی، بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا تھا۔ بیرسٹر گوہر خان نے یہ بھی کہا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، جن تکنیکی بنیادوں پر فیصلہ دیا گیا وہ مس ریڈنگ ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو قوتیں یہ سب کروا رہی ہیں انہیں 8 فروری کو شکست ہوگی۔ تو آپ کو بتائیں کہ علی ظفر وہ بھی گفتگو کر رہے تھے، بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے یہ کہا کہ تمام امیدوار اب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ تو آج کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہم آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر علی ظفر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام امیدوار اب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔